तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जान से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। Jesus, Almighty God, Jesus, more precious than gold, Jesus, exalted King and Holy One, Jesus, let your perfect will be done. Yeshua, Lamb upon the throne, Yeshua, we worship you alone. Yeshua, Savior, Comforter, Redeemer, friend. Yeshua, the beginning of the end. Jesus Lord, Jesus, Lord, Son of God, Son of God, you are above all gods. Mighty One, Mighty One, Prince of Peace, Prince of Peace, the Lord and King of all. Jesus Lord, Jesus, Lord, Son of God, Son of God, you are above all gods. Mighty One, Mighty One, Prince of Prince of Peace, Peace, the Lord and King of all. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಯ್ಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಕರಿಗೆ. ಯಾಹುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೆಹೋವನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಯೆಹೋವನ ಸೇವಕರೇ, ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಲಯದ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರೇ, ಆತನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ಯಾಹುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯಾಹುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ, ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೋರುತ್ತಾ, ಸ್ವಾಮಿ, ಇದುವರೆಗೆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ವಚನದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಜೀವಿಸುವಂಥ ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ದಿವಸ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಾವು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಬಯಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಪ್ಪ, ನೀನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸು. ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಪ್ರಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಯವನಸ್ಥರನ್ನು, ಮುಪ್ಪಿನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸಪ್ಪ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಟು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸಗಳು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡು. ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೊರಿತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಕೊಡು. ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು 12th ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗಲಾರದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. 10th ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಆಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೊಡು. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೇ ಶೃಂಗರಿಸಿ ನಡೆಸು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಆತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೋ. ಅವರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ನೀನೇ ದೂರ ಮಾಡು. ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ನಡೆಸು. ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿವಸ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ವಚನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಈ ಮುಂದಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು
ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯನವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯನವರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೇಯಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಡಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾ ಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಸತ್ಯವೇದದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವು ಮೊದಲನೇ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಬರೆದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಸಂಧಿ 11ನೇ ವಚನದಿಂದ 21ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಉಂಟು. ನಾನು 21ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ. 1 John chapter 4 verses 11 to 21. I will be reading the 21 verse. ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವು ಆತನಿಂದ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದೇ. ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ. मनुष्य के जीवन में फेलोशिप या संगति बहुत ही आवश्यक है. बिना संगति के, बिना फेलोशिप के मनुष्य जो है अपने जीवन में नहीं जी सकता है. और इसीलिए हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति को जो है संगति होना या फेलोशिप रखना बहुत ही ज़रूरी है. लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन टू यू. आज ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, व्हाट इज़ फेलोशिप? संगति का मतलब क्या है? अन्योन्यते अंदरे ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ इसका अगर डिक्शनरी के मीनिंग में अगर हम देखते हैं, इट इज़ लाइक एसोसिएशन ऑफ अ फ्रेंडली कैरेक्टर. एसोसिएशन ऑफ अ फ्रेंडली कैरेक्टर यानी कि दो दोस्त लोग जो है मिलकर जब रहते हैं उसे हम फेलोशिप कह सकते हैं. वेयर दे आर शेयरिंग द कॉमन इंटरेस्ट. वे एक दूसरे की पसंदीदा, एक दूसरे के जो पसंद चीज़ें रहती हैं, जो इंटरेस्ट होता है कॉमन, उसके ऊपर वह बात करते हैं. और एक व्यक्ति इस तरह से कहता है, इट इज़ लाइक टू फेलोस इन द सेम शिप. टू फेलोस इन द सेम शिप. दो व्यक्ति जो एक ही नाव में सवार होकर जाते हैं, इसे भी हम फेलोशिप कह सकते हैं, अगर कुछ लोगों ने कहा है. बट व्हाट डू यू मीन बाय रियली फेलोशिप? फेलोशिप का मतलब क्या है? या फिर बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फेलोशिप. आज वचन के आधारित पर ये मसीही संगति के बारे में हम जानेंगे. So the biblical understanding of the Christian fellowship is originated from Genesis chapter 2 verse 18. इसकी जो शुरुआत हुई है, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 18 वचन में क्या देखते हैं हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाने के बाद सारे प्राणी, सारे जीव जंतु, पूरे सृष्टि के ऊपर आदम को जो है उन्होंने अधिकार दे दिया था. लेकिन वो वचन ये कहता है कि उनके लिए कोई भी सूटेबल पार्टनर नहीं था जिनके साथ वो संगति कर सके, जिनके साथ वो जो है रह सके. और इसीलिए परमेश्वर ये कहता है, इट इज़ नॉट गुड फॉर अ मैन टू बी अलोन. और इसीलिए ज़रूरी है कि एक मनुष्य अकेला ना हो, उनके लिए एक संगति बनाया जाए. तो वहीं सर आधारित पर शुरू होकर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को एक संगति के रूप में बनाया, पार्टनर के रूप में बनाया. ये दोनों मिलकर जो है और एक के साथ संगति करते थे, और वो है परमेश्वर with God. So the biblical understanding of our fellowship, it begins with God. परमेश्वर की ओर से प्रारंभ होती है और हमारे साथीदारों के साथ हमारी संगति होती है. और इसलिए हम ये कह सकते हैं, क्रिश्चियन फेलोशिप इज मोर ऑफ अ इंक्लूसिव फेलोशिप. मसीही संगति जो है एक पूरे इंक्लूज यानी कि सभी लोगों को मिलाकर चलती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि करीबन 7 रेफरेंसेस है, 7 रेफरेंसेस है, इस बात को बताती है कि क्रिश्चियन बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रिश्चियन फेलोशिप किस तरह से हमारी मसीही संगति बाइबल के आधारित पर है कहकर. सबसे पहला
यूहन्ना उसका पहला अध्याय 13 वचन में हम देखते हैं कि वी आर ऑल बॉर्न ऑफ द सेम फादर। हम सभी जो विश्वासी है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम एक संतति या फिर एक हमारे लिए एक पिता है। सेकेंड, वी ऑल हैव बीन बॉट विद द सेम प्राइस, दैट इज द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम सभी लोगों को एक ही चीज के द्वारा मोल लिया गया है, वो प्रभु यीशु मसीह का लहू। पहला कोरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 20वें वचन के अंदर हम पाते हैं। तीसरा, वी आर ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेम बॉडी। हम सभी लोग जो है एक ही देह के या फिर एक ही शरीर के अंग है। कोलोसियों उसका पहला अध्याय 18 वचन, कोलोसियंस 1:18, वी आर द मेंबर्स ऑफ द सेम बॉडी। ये थर्ड है। चौथा अगर हम देखते हैं, वी आर ऑल टॉट एंड लेड बाय द सेम स्पिरिट, दैट इज द होली स्पिरिट। हम सभी लोगों को परमेश्वर पवित्र आत्मा सिखाते हैं और अगुवाई करते हैं। यूहन्ना उसका 16वां अध्याय 13 वचन में हम देखते हैं। दिस इज द फोर्थ थिंग। पांचवा, वी ऑल वॉक इन द सेम पाथ। हम सभी लोग जो है एक ही रास्ते पर, एक ही राह पर चलते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिखाया है। दूसरा कोरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 7वां वचन कहता है, सो वॉकिंग इन द सेम पाथ, दिस इज द फिफ्थ वन। सिक्स्थ इज वी आर सर्विंग द सेम मास्टर। हम जो है एक ही मालिक की सेवा करते हैं। मत्ती उसका 23वां अध्याय 8वें वचन में हम पाते हैं। सातवीं जो पॉइंट है वो ये है, वी आर ऑल द सेम, वी आर द हेयर्स ऑफ द सेम हेरिटेंस। हम सभी लोग जो है एक ही जायदाद के वारिस है, हम कह सकते हैं एक ही इसके वारिस है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 17 इस बात को बताती है। सो ओवरऑल वी कैन से ऑल दिस रेफरेंस, देयर आर नंबर ऑफ रेफरेंसेस कि किस तरह से हमारी संगति जो है परमेश्वर के अंदर और मसीही एक दूसरे के अंदर हम सब एक है, ये संगति करना जरूरी है करके हम देखते हैं। सो द क्रिश्चियन फेलोशिप टेक्स प्लेस वेयर, ये मसीही संगति कहाँ पर हो सकती है या फिर कहाँ पर चलाई जाएगी, हम कहेंगे। हम ये कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा मत्ती उसके 18वें अध्याय में 20वें वचन के अंदर देखते हैं, जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पर संगति होती है, वहाँ पर परमेश्वर उपस्थित रहता है और वहाँ पर ये सारी बातें जो कॉमन मैंने बताए हैं, ये सारी बातें उनके अंदर पाई जाती है और इनके आधारित पर जब हम मिलते हैं तो हमारा संगति जो है ये मसीह संगति कहलाते हैं। नाउ इफ यू टेक इन डेली एग्जाम्पल्स के अंदर हम परिवार होकर जब हम मिलते हैं वो हमारी मसीह संगति है। क्रिश्चियन वर्शिप सर्विस संडे के दिन आराधना में करते हैं वो एक मसीह संगति है। प्रेयर मीटिंग्स के अंदर वो एक मसीह संगति है। बाइबल स्टडी करते हैं वो एक मसीह संगति है। जब हम सब लोग मिलकर सेवा करते हैं वहां पर भी मसीह संगति कहलाती है। सो ओवरऑल वी कैन से दैट मसीह संगति बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे दैनिक दिनों के लिए, हमारे दैनिक जीवन के लिए। और साथ में इस मसीह संगति को करते समय कुछ बातों को हमें याद रखना जरूरी है। मैनी ऑफ अस, हम में से सभी लोग जो है विश्वास में आने के बाद इस चीज को हम कई बार जो है नकारते नहीं है बल्कि इग्नोर करते हैं। कई बार इग्नोर करते हैं। किस बात को इग्नोर करते हैं? एक बात तो हम रखते हैं कि सबके साथ संगति तो रखते हैं, लेकिन दूसरा बात बहुत ही इंपॉर्टेंट वो होता है, वो ये है कि परमेश्वर के साथ संगति रखना बहुत ही जरूरी है। यू एंड आई नीड टू हैव दिस फेलोशिप विद गॉड, देन ओनली आवर फेलोशिप विल बी स्ट्रॉन्ग विद द बिलीवर्स। जब हमारा संगति परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग रहता है तब ऑटोमेटिकली हमारे विश्वासियों के साथ भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 3 वचन कहता है, माई फेलोशिप इज विद द फादर एंड द सन। 1 Corinthians chapter 1 verse 9 it is again say the fellowship with God, परमेश्वर के साथ इस संगति को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। Then he says after that you can have the fellowship with the believers, that is also very very important. So today every one of us, आज हम सभी लोगों को जरूरी है कि हम अपनी संगति को, अपनी मसीह संगति को स्ट्रॉन्ग करना है तो पहले परमेश्वर के साथ मेरा संगति होना बहुत ही जरूरी है। द अर्ली चर्च, आदि काल के कलीसिया, ये सबसे बड़े पैमाने पर एक उदाहरण के लिए रूप में हमारे सामने है। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42 के वचन में देखते हैं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42वां वचन ये कहता है कि आदि काल के कलीसिया जो है वो संगति करते थे,
रोटी तोड़ने में, परमेश्वर के वचन को सुनने में, सिखाने में और शिष्यों को एक साथ रखने में, ये संगति के द्वारा उन लोग किया करते थे करके वचन कहता है। सो टुडे इफ यू सी दैट द क्रिश्चियन फेलोशिप, आज मेरे लिए तुम्हारे लिए भी जो है ये इम्पोर्टेंट है कि हम एक दूसरे को साथ संगति रखकर आगे बढ़ते जाए। Why it is so important? क्यों मसीही संगति जो है क्यों इतना प्रामुख्य है, इसका मैं पर्पसेस बताता हूँ। अराउंड 7 है, अगेन 7 बातें हैं। शॉर्ट में वेरी ब्रीफली आई विल टेल और वेरी इजी टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग। तो एक 7 बातें हैं। पहले क्यों ये मसीह संगति हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहला, मसीह संगति इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हम एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हैं। वी स्ट्रेंथन वन अनदर थ्रू दिस फेलोशिप। एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हैं ये मसीह संगति करने के द्वारा। वी स्ट्रेंथन आवर वन अनदर इन व्हाट? इन फेथ। विश्वास के अंदर हम एक दूसरे को बल देते हैं, एक दूसरे को स्ट्रेंथ देते हैं। एक उदाहरण हमेशा मैं देता हूँ इस बात के लिए कि जब आग लगाते हैं, आग जलाते हैं, फायरवुड हम जिसे कहते हैं, ठंडी के समय पर हम देखते हैं कि वो लकड़ी लगाकर, आग लगाकर उसे सेकते हैं। लेकिन उसी समय पर आप ये देखें कि एक लकड़ी जो जला हुआ है, लेकिन उसको साइड में निकाल कर रख देंगे, थोड़ी देर के बाद जलता रहेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो क्या होगा? बुझ जाता है। लेकिन उसी को वापस से उन आग यानी कि फायरवुड के अंदर वापस रख दो उठा करके, तो क्या होता है? वापस से वो जलने लगता है। तो ठीक उसी तरह से आज हम विश्वासी लोग अपने विश्वास के अंदर कायम रहने के लिए, विश्वास के अंदर उभरते रहने के लिए, जलते रहने के लिए संगति बहुत ही जरूरी है। सो इसलिए मसीह संगति क्या करती है? हमें एक दूसरे को बल देती है। सेकंड, दूसरा जो है, मसीह संगति हमारे लिए एक दूसरे को प्रोत्साहन देती है। टू एनकरेज वन अनदर, इट एनकरेजेस वन अनदर। एक दूसरे को प्रोत्साहन देती है। ये बहुत ही प्रामुख्य है आज के दिन में कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन दे। द बेस्ट एग्जाम्पल मैंने दिया है और उसके ऊपर संदेश भी सुने हैं, जहां पर बारनबास, पौलुस जो यीशु मसीह को अपनाने के बाद कोई भी उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा था, तो तब बारनबास ने पौल को लेकर उनको प्रोत्साहन देते हुए आगे बढ़ाया। और हम देखते हैं कि बारनबास पीछे रहा लेकिन पौलुस को आगे किया। दैट इज द एनकरेजमेंट, या फिर संगति में हम एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं। तीसरा जो है, संगति के अंदर हम करते समय वी नीड टू, व्हेन वी शेयर आवर एक्सपीरियंसेस, हम अपने अनुभवों को या फिर गवाहियों को जब हम बांटते हैं, क्या होता है पता है? ये गवाहियों के द्वारा, ये अनुभवों के द्वारा हमें एक दूसरे को कई बातें सीखने मिलती हैं। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम जब गवाही देते समय, एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं, हमें याद आता है कि यस, उन्होंने जिस तरह से अपने जीवन में जय पाया है, मैं भी उसी तरह से मेरे जीवन में जय पाऊंगा। उन्होंने प्रार्थना के द्वारा जय पाया है, वैसे मैं भी प्रार्थना के द्वारा जय पाऊंगा। मेरे भी जीवन में कुछ अड़चन थी, लेकिन इस अड़चन को कैसे उन्होंने पार किया है, वैसे ही मैं भी पार करूंगा कहकर ये एक्सपीरियंस जब हम शेयर करते हैं, तो ये इसके द्वारा हम सीखते हैं। नॉट ओनली जस्ट ये बातें हैं, बट ऑल्सो वी लर्न टू सफर। हम एक दूसरे के साथ जो है सीखते हैं किस तरह से हम सारे दुखों को अपने जीवन में सह पाए। ये तीसरा है। चौथा बात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है टू मैनिफेस्ट अवर जॉयस। हम अपने आनंद और खुशी को एक दूसरे के साथ बांटते समय पर ये लोगों को भी हम आनंद देते हैं और साथ में मेरा भी आनंद, मेरा भी खुशी जो है और बढ़ता है। अभी उदाहरण के लिए बर्थडेज या फिर मैरिजेस, ये सब चीजें करते हैं, हम क्या करना चाहते हैं इसके द्वारा? हमारी खुशी के अंदर आप शामिल होकर आप जो है हमारी खुशी को बढ़ाते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा ये कह सकते हैं कि जब मैं विश्वास के अंदर अपने जीवन में विश्वास को पाकर आगे बढ़ता हूँ, तो तब मुझे जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी में लोगों के साथ में बांटते समय पर वो खुशी और बढ़ती है। When a brother comes in, कोई अगर भाई, कोई बहन एक विश्वास में आने के बाद जो आनंद, जो खुशी मुझे मिलती है, उस भाई को जो आने के बाद दूसरों को भी उतना ही खुशी मिलेगी, उनको भी उतना ही खुशी मिलेगी। सो दिस इज व्हाट इट हैपेंस। मसीह संगति में अपने आनंद को हम एक दूसरे के साथ बांटने के द्वारा होती है। पांचवी बात जो है,
टू वीप विथ वन अनदर, एक दूसरे के दुख में हम सहभागी होते हैं। इस क्रिश्चियन फेलोशिप के अंदर एक को दुख होता है तो हमें दूसरों को भी दुख पहुंचता है। जैसे मैंने कहा कि वी आर द मेंबर्स ऑफ द वन बॉडी, तो अगर हाथ में दर्द है तो पूरा शरीर हमारे लिए दर्द जैसा ही रहता है। सर में दर्द है तो हमारा पूरा बॉडी के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। पैर में दर्द है तो हम चल नहीं पाते, तो होल बॉडी इस सिस्टम इज कम्प्लीटली डिवास्टेटेड। इस तरह से हम देखते हैं। तो ठीक उसी तरह से दुख जब होते हैं तो हम मसीह संगति के द्वारा जब दुख बांटते हैं वो जो है हमारे लिए कम होती है। रोमियो उसका 12वां अध्याय 15 वचन के अंदर हम देखते हैं। छठी बात यह है, टू एनलाइटन द वीकर ब्रदर, जो कमजोर भाई होते हैं, बहन होते हैं, उनको राह दिखाना या फिर उनको सहायता करना। टू हेल्प हिम, टू एनलाइटन हिम, अगर उनको कोई कमी है या नॉलेज की या फिर किसी और बात की गाइडेंस की, तो उन्हें अगुवाई करे, उन्हें आगे चलाए, या फिर और किसी भी बात की मदद है, उस मदद को हमें पूरा करना है। ये छठी बात हम देखते हैं। सातवीं बात यह है, टू एक्सॉर्ट द बैकस्लाइडर टू रिटर्न टू द लॉर्ड। हर एक विश्वासी अगर विश्वास में कमजोर होकर पीछे हो गया है तो संगति के द्वारा हम क्या करते हैं, उनको वापस से लेकर आते हैं, अंदर मसीह के पास लेकर आकर उनको वापस से ले चलते हैं। जेम्स उसका याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय 19 और 20वें वचन में हम देखते हैं, जहां पर कि एक विश्वासी अगर पीछे गया है, अगर उसे वापस लेकर आते हैं प्रभु के अंदर, ये परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आज ये मैं और आप जो है इस मसीह संगति के द्वारा कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द क्रिश्चियन फेलोशिप। मसीह संगति जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। अंत में हम देखते हैं कि मसीह संगति जब हम करते समय पर क्या होता है, क्या बातें सीखते हैं हम। पहला, वी लर्न टू वॉक विद गॉड, हम परमेश्वर के साथ चलने का सीखते हैं। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 7वें वचन के अंदर हम देखते हैं नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स वापस से, कि जहां पर एनोक ने परमेश्वर के साथ चला करके देखते हैं। ही वॉक्ड विद गॉड मोर देन 300 years। जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं उनका जीवन जो है अनोखा होता है। पतरस और यूहन्ना जब वे विश्वास में आने के बाद जब भी जाते वचन प्रचार करने के लिए साथ में जाते थे। वे साथ में जाते समय हम देखते हैं कि एक मंदिर के पास बैठा हुआ एक व्यक्ति जो लूला था, वो चल नहीं पाता था, उसको देख कर कहते हैं कि तू खड़े हो जा और चलने लग, और तुरंत जो है व्यक्ति चलने लगा करके देखते हैं। एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग विद गॉड। व्हेन दीज टू पीपल, ये दो व्यक्ति जब प्रभु के अंदर रहकर चल रहे थे, दूसरों को भी खड़ा कर कर उन्हें चलना सिखाया। मसीह संगति हमारे जीवन के लिए करती है। हम जब साथ में होते हैं तो परमेश्वर के साथ चलना हम सीखते हैं, दूसरों को भी खड़े रह करके चलाते हैं। दूसरा जो रिजल्ट है हमारे क्रिश्चियन फेलोशिप के द्वारा ये मिलती है, वी लर्न टू सर्व इन दी परसिक्यूशन, यानी कि कठिनाई के समय पर भी जो है हम सेवा करना छोड़ते नहीं हैं। यू नो, वेरी बेस्ट एग्जाम्पल पॉल एंड सिलास के बारे में हम देखते हैं, जो प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर जाने के बाद दोनों ने जो है छोड़ा नहीं, सेवा वहां पर रखी, आराधना किया, प्रार्थना किया, जिसके द्वारा अद्भुत चमत्कार वहां पर हुए करके देखते हैं। सो दे वर स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस थिंग। आज मसीह संगति के अंदर ये जरूरी है कि हम एक साथ रहकर आराधना करें, प्रार्थना करें, और परसिक्यूशन के टाइम पर जो है हमें सेवा करना जरूरी है। इंडिया की परिस्थिति किस तरह से होगी हमें पता नहीं है आगे चलकर, लेकिन आज इस मसीह संगति के द्वारा हम सीख के ले कि हम अपने आप को जो है इस सेवा के लिए तैयारी करें। फाइनली तीसरी बात जो है वो ये है, दूसरा पत्र 3 अध्याय 18 वचन में देखते हैं, यू हैव टू ग्रो एंड ग्लो फॉर द लॉर्ड। ग्रो एंड ग्लो, यानी कि आप परमेश्वर के अंदर बढ़िए और परमेश्वर के लिए उभर कर चमक कर आइए। So this is the ultimate aim, the result of the Christian fellowship. So I have told you, मैंने बताया कि what is Christian fellowship, मसीह संगति क्या है, दूसरा क्यों मसीह संगति इम्पोर्टेंट है, तीसरा मसीह संगति करने के द्वारा हमारे जीवन में क्या मिलते हैं। तो ये सारे लाभों को पाते हुए आज हम ये कहें कि लॉर्ड वी वांट टू कंटिन्यू आवर क्रिश्चियन फेलोशिप, हमारी मसीह संगति, आत्मिक संगति को हम बढ़ाकर इसी तरह से बढ़ते जाएं। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ, ಕೃಪಾ ಭರಿತನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ನಾವು ನಿನ್ನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಿ
ಇನ್ನು ಸಹೋದರರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ, ಸಭೆಯ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ, ಇನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೀಡಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಸಭಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು. ನಮ್ದು ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಸಹ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯವಾರದ ಆರಾಧನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕೂಟ, ಯವನಸ್ಥರ ಕೂಟ, ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮದುವೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಉಂಟು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಳಿಚಕ್ರ ಯಲೇರಿ ಇವರ ಮಗಳಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಆಕೆಗೂ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಶಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರ ಮಗನಾದಂತಹ ರೂಬೇನ್ ಎಂಬ ಆತನಿಗೂ ಇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಿವಾಹವು ದಿನಾಂಕ 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಸಾಯಂಕಾಲ 4:15 ಗಂಟೆಗೆ ಸೈಂಟ್ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಚರ್ಚ್ ಹಾಲ್, ಅಂಧೇರಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾರುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮದುವೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿ ಅಭ್ಯಂತರವಿದೆಯಾದರೆ ನೀವು ಲಿಖಿತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಕಟಣೆ, ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಜ್ ನವೆಂಬರ್ 28, 2021 ಈ ದಿವಸ ಅಂದರೆ ಸಂಡೇ ದಿವಸ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಎಜ್ರಾ ಮತ್ತೆ ನೆಹೆಮಾಯ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. WSCS ನಲ್ಲಿ ಮರಿಯಾ ಟೀಚರ್, ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಲೀನಾ ಟೀಚರ್, ಯವನಸ್ಥರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಐಸಕ್ ಇವರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಮೆಥಡಿಸ್ಮೆನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಬಂಡೆ ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಈಗ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಗಳು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೀವು ತಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅನೇಕರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ತಕೊಂಡಿಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನೀವು ಗ್ರಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಿಂಗಳಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಯಾರಾದ್ರು ಬಾಕಿ ಉಂಟು ದಯಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿನ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅನೇಕರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಣಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೀವು ಪೂರೈಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತಾನೋ, ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತಾನೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸೂಚನೆ, ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಡೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಬರಲ್ಪಟ್ಟುಂಟು ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆದರೆ 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಚರ್ಚು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಭೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೆ ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸಂಡೇ ಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಡೇ ನಮ್ಮದು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೂಚನೆ, ಯಾರ್ಯಾರು KPCA ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನು ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಡಿಯೋಯನ್ನು, ಮಕ್ಕಳ ವಿಡಿಯೋಯನ್ನು ನೀವು ಬೆನ್ನಿಸರಿಗಾಗಲಿ ನನಗೆ ಆಗಲಿ ಕಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದಂಥ ದೇವರೇ, ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ದಿವಸ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ.
ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು. ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೋ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಿನಗೆ ಆಧೀನರಾಗಿ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಹೇ ದಿವ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾ ಬದಲೇನು ಕೊಡುವೆ, ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಣಯಾವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಯೋ ಏನು ಸಾಲದು. ಆಮೆನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರೈಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ನೆಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. Praise the Lord. God bless you all. Amen. जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के, हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के। जब तक हम हैं इस जहां में जलते जाना है, अंधियारे डगर पे हो आंधियां कहीं, अंधियारे डगर पे हो आंधियां कहीं, हर डगर पे ज्योति यीशु की फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं, जलना जिंदगी हमारी यीशु के लिए, जलना जिंदगी हमारी यीशु के लिए। जिसने दाग हर गुनाह के मेरे धो दिए, जिसने सूली पर जलाई ज्योति प्रेम की, जिसने सूली पर जलाई ज्योति प्रेम की, वो ही ज्योति आज मेरे दिल में जल रही। कोई भटका हो डगर पे बेपनाह सा, कोई भटका हो डगर पे बेपनाह सा, आज सूली के तले उसे बुलाना है। हम तो जलते दीप हैं
यहाँ गुनाह में जल रही थी जिंदगी, यहाँ गुनाह में यीशु ने हमको ले लिया अपनी पनाह में। दे रहा आवाज सबको, आओ मेरे पास। दे रहा आवाज सबको, आओ मेरे पास। पास रखूंगा हमेशा, होते क्यों निराश। जिसने पाया है हमें देकर अपनी जान, जिसने पाया है हमें देकर अपनी जान, उस मसीह की ज्योति हर कहीं फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के। जब तक हम हैं इस जहां